डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स डिस्कवर्ड येट? क्या आप जानते हो कितने तत्वों की खोज अभी तक हुई है? डू यू नो द साइंटिस्ट हु सक्सेसफुली क्लासिफाइड एलिमेंट्स? क्या आप ऐसे पहले वैज्ञानिक को जानते हो जिन्होंने सफलतापूर्वक तत्वों का वर्गीकरण किया? हाय, माई सेल्फ आशुतोष सिंह. वेलकम टू ऑल the RA Academy channel. Let's start with very interesting chapter, that is classification of elements. Stay tuned till the end of the video to understand the chapter better. पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें. थिंक, सोचिए, if this classification had not happened, would we have been able to recognize the matter, whether it is metal, non-metal and metalloid? सोचो, अगर यह वर्गीकरण नहीं हुआ होता या क्लासिफिकेशन नहीं हुआ होता तो क्या हम पिंड, ऑब्जेक्ट या मैटर को पहचानने में सक्षम होते कि क्या यह धातु है, अधातु है या धातु सदिश है? Only 30 elements were known in the 18th century as the time progressed. 18वीं शताब्दी में केवल 30 तत्वों की खोज हुई थी. जैसे जैसे समय बढ़ता गया, as the time progressed, the curiosity of knowing the elements and their properties grew. जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे वैज्ञानिकों ने तत्व और उनके गुणधर्म को जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई और वैज्ञानिकों ने तत्व और उनके गुणधर्म का वर्गीकरण शुरू किया. Dear students, as you can see the content, on the basis of the content, the first point is the introduction and the second point is the classification of elements. So, introduction is a very important topic. This topic is a very important topic. बिना इंट्रोडक्शंस के आपको इस चैप्टर का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है. Dear student, the second point is the classification of elements. In this classification of elements, many scientists have contributed for the classification of elements. The first contribution was given by the Dobbe-Reiner, and the second contribution is given by the Newland, and the third is a Mendeleev, and the last contribution is given by the Henry Moseley, and that table is known as a modern periodic table. So let's talk about the Dobbe-Reiner traits. Dobbe-Reiner classified the elements in 1817. At that time only 30 elements were known. Dobbe-Reiner के समय सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही नोन थे, बट Dobbe-Reiner इन 30 एलिमेंट्स या 30 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में अनसक्सेसफुल रहे. Newlands, he was an English chemist, has started to classify elements in 1864 on the basis of musical notes. बाद में जब न्यूलैंड्स आए, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन 1864 में किया और ये जो क्लासिफिकेशन था ये म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे था, जो कि आप लोग सुनते हो, सा रे ग म प ध नी. ऑन दैट टाइम 62 एलिमेंट्स वर नोन. न्यूलैंड्स के समय में सिर्फ और सिर्फ 62 एलिमेंट्स या 62 एलिमेंट्स क्या थे, नोन थे. एंड he was unable to classify all these elements on the basis of musical notes. म्यूजिकल नोट्स के बेसिस पे भी न्यूलैंड्स सभी एलिमेंट्स या 62 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में अनसक्सेसफुल रहे. उस समय जो 62 तत्व ज्ञात थे उनमें से कुछ ही एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन न्यूलैंड्स ने किया. सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने में उनको सफलता हासिल नहीं हुई. Dear students, revolution has came in 1869 when Russian scientist Mendeleev started their classification and completed periodic table and classify all the 63 known elements. At the time of Mendeleev, only 63 elements were known. Dear students, Mendeleev had classified all the 63 elements on the basis of increasing order of atomic mass. Yes, atomic mass को हम परमाणु भार कहते हैं. Mendeleev ने 63 नोन एलिमेंट्स को 63 तत्वों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में किया. Dear students, due to few drawbacks, Mendeleev periodic table has lost its existence before 1913. Yes students, कुछ गलतियों के कारण, कुछ त्रुटियों के कारण मेंडलीव पीरियोडिक टेबल
का एग्जिस्टेंस 1913 से पहले ही क्या हो गया, खत्म हो गया. This is a modern era and still Henry Moseley periodic table exists. That is why it is known as a modern periodic table. Yes, I am talking about the modern periodic table. Henry Moseley was a scientist who classified the elements in 1913, and that table is known as a modern periodic table because still we are using this table. अभी भी हम इस modern periodic table, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है modern periodic table. सो डियर स्टूडेंट्स, आपके टीचर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपको क्या पूछ सकते हैं, डोबेराइनर ने अपने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कब किया? सो द आंसर इज 1817. डोबेराइनर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन 1817. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन अराइज, व्हेन न्यूलैंड्स क्लासिफाइड द एलिमेंट्स? तो Newlands classified the elements in 1864. Now, the Mendeleev classified the element in 1869. Students, modern periodic table made by Moseley, and Moseley was the first scientist who successfully classified all the elements on the basis of increasing order of atomic number, and the atomic number is denoted by the Z. Dear students, come to the first topic, that is introduction. So how many subtopics are included in the introduction? Let us see. Dear students, in the introduction we will go through atom, element, types of elements, states of matter, types of matter, atomic weight and atomic number. So let's start with the atom. Dear students, first point is atom. एटम क्या है एक्चुअली, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु. जो एलिमेंट्स होता है या फिर जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स या एलिमेंट्स का सबसे छोटा वाला जो यूनिट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट्स. कोई भी एलिमेंट्स का क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा जो मैटर हैं वो एलिमेंट्स से ही बने हैं और उसी एलिमेंट्स का एक सबसे छोटा यूनिट्स क्या होता है? एटम होता है. अब ये जो एटम है, ये जो वर्ड है, ये किसने डिराइव किया था? The word atom has derived by the Democritus before 2000 years ago. आज से 2000 साल पहले डेमोक्रिटस ने इसको एटम नाम दिया. किसको? परमाणु को. पर फिर परमाणु का नाम किसने दिया? परमाणु का नाम आज से 4000 साल पहले महर्षि कणाद ने दिया था. नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स है, आपको पता चल गया एलिमेंट्स का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम होता है. बट एक्चुअली एलिमेंट्स क्या है? तो एलिमेंट्स एक सब्सटेंस है. द एलिमेंट इज अ सब्सटेंस फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट और बाय नेचर. एग्जाम्पल, हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कहाँ से फाउंड होता है? ये नेचर से फाउंड होता है. नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. So basically elements are classified into three types. As you can see, first one is a metal, second one is a non-metal, and third one is a metalloids. So metal having a different properties, non-metal having a different properties, as well as metalloid having a different properties. So let us talk about the metal. Metal having a shine, and it is a good conductor of electricity and heat, and it has a high melting point. Example, iron. Iron having a melting point more than 1000 degrees Celsius, and it is a ductile. Metal is a ductile. It means it can be drawn into the wire. And the last one is it can donate the electron. Metal always donate the electron to the non-metal. Metals क्या करते हैं? हमेशा non-metals को electrons का donation करते हैं. इन केस ऑफ नॉन मेटल, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स में ना ही तो शाइन होती है और इट इज़ अ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी लो होती है, और इसको आप वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते हो. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्शन ही करते हैं. किससे? मेटल से करते हैं. और मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है. मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है. एग्जाम्पल, बोरॉन. द नेक्स्ट वन इज अ स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर इज अ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. कितने स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट होते हैं. तो सबसे पहला है सॉलिड, उसके बाद है लिक्विड, उसके बाद क्या है? गैस. तो सॉलिड में जो इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है. इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में अगर हम बात करें तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होता है एज कंपेयर टू सॉलिड.
बट अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। एग्जाम्पल, अगर वाटर को आप फ्रीज करो तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर क्या हुआ, लो, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है एज यू कैन सी। बट जैसे ही आप उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे वो सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज अ गैसियस स्टेट। तो व्हेन यू आर हाई इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, जैसे ही आप क्या करते हो, लिक्विड को बॉईल करने लगते हो, तो क्या होता है, गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो जब वाटर का कन्वर्जन सॉलिड्स में होगा, इट मीन जब उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होगा, इनके जो वाटर के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे कुछ इस प्रकार होंगे, और लिक्विड में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, लो होंगे। इन केस ऑफ गैसियस स्टेट में इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है, बिकॉज इनको जितनी भी स्पेस मिलती है, जितनी भी जगह मिलती है, वो सारे के सारी जगह को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। The next one is a types of matter. So matter have a three types. First one is a element, second one is a compound, and third one is a mixer. Let us understand with the help of picture. So in the picture, sodium is a element and chlorine is also element. When two elements are combined together to form a कंपाउंड, जरूरी नहीं कि दो ही एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करो, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी मिला के आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। सो हियर इज अ NaCl इज अ कंपाउंड। तो NaCl क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, एलिमेंट से क्या हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। लेट्स टॉक अबाउट द मिक्सचर। सो मिक्सर में क्या होगा, सुगर इन वाटर, इफ यू आर पुटिंग सुगर इन द वाटर इट विल बी अ मिक्सचर। अगर आप क्या करते हो, शुगर या वाटर में आप शुगर क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो क्या हो जाएगा, वो मिक्सचर हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सॉल्ट इन वाटर इज अ सी वाटर। अगर आप वाटर में सॉल्ट डालते हो तो सी वाटर की तरह टेस्ट हो जाएगा, तो वो भी क्या हो गया, एक मिक्सचर हो गया। तो एलिमेंट से क्या हुआ, कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, और इसी कंपाउंड से क्या हो गया, मिक्सचर का फॉर्मेशन हो गया। The next is a atomic weight. In that, the first point is a atomic weight is defined as sum of total number of proton and neutron present in the nucleus. So basically जो एटम होता है, एटम का जो वेट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर पर डिपेंड होता है। और एटॉमिक वेट को हम A से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हैव अ एटॉमिक वेट इज 23। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, 22.990 is the atomic weight of the sodium. So basically we can say it is a 23 and it is denoted by the capital A. The next is a atomic weight. In that, the first point is a atomic weight is defined as sum of total number of proton and neutron present in the nucleus. So basically जो एटम होता है, एटम का जो वेट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के टोटल नंबर पर डिपेंड होता है। और एटॉमिक वेट को हम A से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हैव अ एटॉमिक वेट इज 23। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, 22.990 is the atomic weight of the sodium. So basically we can say it is a 23 and it is denoted by the capital A. So the last point of the video is the atomic number. So the first point is a atomic number or proton number. Remember that atomic number and proton number are the same. You can say atomic number or you can say the proton number, and it is defined as the total, remember the total number of proton प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम और द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है किसका, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस पे क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो लेट अस फॉरगेट अबाउट द न्यूट्रॉन्स एंड लेट अस टॉक अबाउट द प्रोटॉन्स ओनली। तो जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा वही क्या होगा, आपका एटॉमिक नंबर होगा, एज यू कैन सी। तो सोडियम में जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो सोडियम में प्रोटॉन नंबर होगा 11, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा। सो एज दैट आई
कंपेयर द एटॉमिक नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर। तो आप एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर को सेम कह सकते हो, इसलिए क्योंकि इन दोनों का नंबर क्या होता है, सेम होता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। जो एटॉमिक नंबर होता है वो किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, नॉट स्मॉल जेड। Example, sodium have an atomic number 11. As you can see, the atomic number of the sodium is 11 because the proton present in the nucleus is 11. As I told you कि जितना क्या होगा प्रोटॉन नंबर होगा वही आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। So the proton number in the sodium is 11, so the atomic number will be 11. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द आर्य एकेडमी को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। गॉड ब्लेस यू।